Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama का क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बैक फ्रॉम जिनेवा. एंड राबिया, आपने कुछ लेडी बॉस वाली वो टी शर्ट पहनी हुई है, या आप कुछ एम्पावरमेंट या कुछ अपने आप को आज कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रही थी? इट्स लुकिंग वेरी क्यूट बाय द वे, Do बट you think व्हाट्स I द need पॉइंट? to do that? Do you think I need to do that? You know me so well. Do you think I need to wear a t-shirt to remind myself about empowerment? Sorry, but yeah, do you think? मैंने कहा मंडे मॉर्निंग है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या हालात है. मैं तो नहीं बैठी हुई दफ्तर में. मैंने नो कहा कि एक्चुअली मंडे मॉर्निंग कल हम लोग बहुत देर तक एक सेट की शूट पे थे, तो हमें बहुत लेट वापस आई वाज वेरी टायर्ड. लेकिन मैं सुबह 9:45 घर से निकल गई थी. फर्स्ट आई वेंट टू वन बेकरी. आई पिक्ड अप बिस्किट्स एंड अ मार्बल केक. फिर आई वेंट टू अनदर प्लेस. वहां से मैंने ब्रेड स्टिक्स और एक और कोई चीज ली. एंड फिर मैं ऑफिस आई ये सामान सारा लेके, क्योंकि हमारा मंडे हफ्ता शुरू हुआ है. तो शाजिया नोज एंड ऑल दोस पीपल हु फॉलो माय स्टोरीज नो कि हमारे यहाँ मंडे को जो है ना वो बिस्किट्स का स्टैक आता है ऑफिस के लिए. और आजकल वो वेडनेसडे तक खत्म हो जाता है. तो मैंने फिर मार्बल केक भी उठाया, मैंने रस्क भी उठाए, ताकि हम पूरा हफ्ता लास्ट कर सकें. क्योंकि फ्राइडे को ना या थर्सडे को लिटरली हम सब फिर रहे होते हैं कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए. हम सब ने साफ कर दिया होता है खा पी के. तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ. तो ये मैंने किया. सो नहीं, मंडे वाज ओके, बट आई जस्ट हैव टू डू फाइनेंसेस टुडे, सो आई एम नॉट इन अ गुड मूड. यस, दैट्स इट. Okay, so everybody watch out. Darar, watch out. And Bakhtavar, watch out. And Fraud and everyone else, watch out, because Rabia is doing her finances today. She's not in a good mood. Okay, we have 6 dramas. Before we do the dramas, I just wanted to talk about 2 things that are trending on Twitter. Number one, kal raat se trend hona shuru hua tha, banned release Joyland. So Joyland has been banned right now, and Sam Sadiq posted, the maker of the film, he posted कि हमें इसका ban certificate मिल गया था, which is actually means कि it was cleared by the censor board in August. लेकिन अब उन्होंने एकदम से हमें वापस बैन कर दिया. फिल्म को नवंबर में रिलीज हो रही थी, अभी अनकरीब होने वाली थी, if I'm not mistaken. The reason for the ban, when he asked them, was कि they have received complaints about the content of the movie, because they're saying it's pushing an LGBTQ agenda and homosexuality and adultery. These are the 3 things that I skimmed through in the morning and late night when I saw that. So what I'm doing right now is I'm just informing Rabia and giving a little bit of a take, and you can give yours too. We had Nadia Jamil, Sarwat Gilani, and a lot of other celebrities and people on Twitter posting कि ये मूवी जो है, it was actually going to be tipped off for the Oscar. लेकिन उसको ऑस्कर में नॉमिनेट होने के लिए, या for it to get through all those steps, it needs to be screened in its home country for 1 week, and the deadline is 30th November. तो 30 नवंबर से पहले अगर वो एक हफ्ते स्क्रीन नहीं हो, I have read all this. I could be a little mistaken on some dates here and there, but this is what I've read. तो there will be a problem. किस्सा ये है कि अगर आप अभी ट्विटर पे जाएंगे, there's actually divided है काफी views. वो लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं देखना, एंड ये जो मूवी है ये ऐसा एजेंडा पुश कर रही है विच वी डोंट वांट. हाँ, कांस में जीत गई है, इट इज प्रमोटिंग अ वेस्टर्न एजेंडा. एंड वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सी देम एज ह्यूमंस. ख्वाजा सरहा कम्युनिटी को हम एज ह्यूमन बीइंग्स नहीं देख सकते, एंड वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. My very simple opinion, and Rabia, you can give yours, is we haven't watched the film yet. Banning content that has not been watched. Now, there are lots of trailers and teasers of movies that push the envelope, and that make you feel that the content is not morally acceptable, yeah, whatever. 2-3 चीजें हैं. I am going to write an article today. Number one, ये आपके cinemas में जा रहा है, उस पे एक age content हो सकती है. Now, if you're talking about religious beliefs, yes, that is what people are most concerned, and the people who are not tweeting for it cannot tweet for it because they haven't watched it yet. उनको नहीं पता कि वो किस, मैं भी इसी उसमें है, कश्मकश में हूँ कि मैं सपोर्ट करूं तो मैं कैसे. So I want to support content that has not been screened yet and it has been banned, and I feel that's not fair. एक जवाब मेरे पास ये आ रहा था कि there should be a jury, a film jury, which should be allowed to watch it from a cross section of society, and they can at least tell अगर लोग इतना complain कर रहे हैं कि there's a problem, which I don't know if it's a solution, but that's one solution that's coming to mind. What do you think? Okay. सबसे पहले मैं तो बहुत जज्बाती हो जाऊंगी इस चीज पे. एंड प्लीज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर,
I'm not for promoting homosexuality or anything. मैं ये बहुत क्लियर करना चाह रही हूँ बात. But हमारे यहाँ हम अब्यूज पे आवाज नहीं उठाएंगे. हम औरतों का हक जब मारा जा रहा है उस पे आवाज नहीं उठाएंगे, उस पे हम ट्रेंड नहीं कराएंगे. हमारे यहाँ जब एक गलत किस्म के कैरेक्टर्स को हीरो बना के पेश किया जा रहा है उस पे आवाज नहीं उठाएंगे. लेकिन एक चीज जो हमने देखी भी नहीं है उस पे हम आवाज उठा रहे हैं. नंबर 1, दिस इज माई व्यू. एंड आप सब कहाँ हैं जब और बहुत कुछ हो रहा है उस पे ट्वीट क्यों नहीं करते हैं? नंबर 2, I think the whole film industry should do an एहतजाज. अगर आपका सेंसर बोर्ड इस काबिल नहीं है कि वो एक डिसीजन ले सके, अगर आपके सेंसर बोर्ड में वो लोग हैं जिनको अपने डिसीजन पे एतबार नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, जिनके पास अपने रूल्स क्लियर नहीं है, अगर आपके के पास कोई अथॉरिटी नहीं है जो सेंसर बोर्ड को भी देख सके, तो प्लीज चेंज दैट सेंसर बोर्ड, बिकॉज दैट सेंसर बोर्ड इज देयर फॉर अ पर्पस. अगर 2 महीने पहले सेंसर बोर्ड ने उसको अप्रूव किया था, तो क्या सेंसर बोर्ड में जितने लोग हैं उनमें से किसी को भी इतना नहीं पता था कि ये मूवी होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही है? इट इज लाइक मेकिंग फन ऑफ योर ओन सेल्व्स. मतलब मैंने आज एक डिसीजन लिया है और मैं उस डिसीजन पे वापस चली जाऊं, फिर आप मुझे उस डिसीजन पे वापस जाने का रीजन भी तो बताएं. द रीजन पीपल आर आस्किंग दिस फिल्म टू बी बैंड is because of the 3 things that you have said, Shazia. So people in the censor board who have seen it should reply back and say कि ये है या नहीं है. You cannot ban a project just because people are complaining who have not even seen that movie. I'm sorry, it just makes me realize that हम लोग कितने restricted तरीके के ब्रेन दिमागी हालत में काम कर रहे हैं कि हमें यही नहीं पता कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस काबिल हैं या नहीं है कि वो डिसीजन ले सकें. एंड आई एम सॉरी, वेयर इज द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री? व्हाई डोंट दे टेक अ डिसीजन? व्हाई डोंट दे डू एनीथिंग? ये सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है? इस सेंसर बोर्ड का मकसद क्या है? ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है अगर वो अपना डिसीजन सही तरह नहीं ले सकते और उस डिसीजन को डिफेंड नहीं कर सकते? मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, सो मुझे नहीं पता. इस फिल्म को बैन करने के लिए तुमने शाजिया स्क्रीनशॉट्स भेजे थे. लोग जो इंटरनेशनल रिव्यूज हैं उनकी बेसिस को उठा के, उन पे से उठा के रेफरेंस यूज कर रहे हैं टू बैन दिस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और वेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू वेरी डिफरेंट है. एक चीज को जिस तरीके से हम देखेंगे, वेस्ट उसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखेगा. वो चीजें उठाएगा जो उन्हें लगेगा कि कंजर्वेटिव सोसाइटी, एक रिस्ट्रिक्टेड सोसाइटी लाइक पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन हम तो यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि लड़कियां यहाँ पे जीन्स भी पहनती हैं, इंग्लिश में भी बात करती हैं, यहाँ लोग बहुत एजुकेटेड भी हैं और हर किस्म का काम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट एंड तरक्की हो रहा है. लेकिन पाकिस्तान का इंप्रेशन बाहर ऐसा नहीं है. So please understand the difference between when a Pakistani or a Desi person will review it and what points they will pick up and what the West will pick up and how will they review it. It's a very deep and very, slightly complicated conversation जिसके लिए हमें एक पूरा different वो चाहिए होगा. But this is my 2 cents on this thing कि अगर वो फिल्म कर रही है ये सब कुछ, then it should be clear, like you said, maybe there should be another independent body of people or the censor board should come up and say for sure कि क्या है क्या नहीं है. हम मतलब होमोसेक्सुअलिटी कोई छोटी चीज तो नहीं है. अगर वो फिल्म प्रमोट करिए तो आपने पूरी फिल्म देख ली, आपको पता नहीं चला कि वो कर रही है या नहीं कर रही है, that you let it go. It was allowed to be screened in Pakistan, in Karachi. 18 November was the date. What happened at that time about your judgment, about your decision-making powers? I'm sorry. And it is not fair to the entire team who's involved in that to raise their hopes. They have spent money to promote it. They have spent money to go to these places. And I think this is not fair to them. मुझे नहीं पता वो फिल्म क्या promote कर रही है या नहीं कर रही है. But जो जगह है, जो bodies हैं who are supposed to do their work, they should do it with responsibility. That's all I want to say. देखा, मैं तो बहुत जज्बाती हो गई. तो बहुत सही बात कही ना. You said the right thing. Just one small thing कि ठीक है, I also understand अगर लोगों की वो sentimentalities को hurt कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. अब कितनी complaints आई हैं? बस 2 complaints आई हैं, 3 complaints हैं, या किसी ऐसी जगह से complaint आई है जिसको आप मना नहीं कर सकते, किसी ने दबाव लगाया है. So my question is, और ये भी अब इतने सारे तुम्हारे पास भी आते होंगे, मेरे पास भी Awaaz.org इस तरह के आते हैं social campaigns. They have to have a petition which has to have an X number of people signing that petition for any action to be taken. So Shazia, even then मैं सारी बातें cover कर रही हूँ ना. मैं कह रही हूँ फिर भी जब किसी ने देखी नहीं है
तो कैसे कर सकते? मैं तो फिर भी कह रही हूँ कि उसको हवा भी देने की कोई वजह होनी चाहिए. और Yes, I cut you and off. then people like you and me who have not watched it cannot, मैं उठ के सही तरीके से नहीं बोल सकती because I'm scared. What if the film really has something because I've not seen it? But what if the Yeah. film is talking about a subject which is uncomfortable? For example, falling in love with a Khwaja Sara. It is an uncomfortable subject for a lot of us, but it's a reality. So इसमें अगर इस subject पे बन रही है तो I'm not sure if it should be banned. You know, so Totally agree. yeah. And one of the points that people came up with कि it is promoting adultery. भाई आपके ड्रामों में क्या हो रहा है? दरार में क्या हो रहा है? जलन में क्या हो रहा था? मेरे पास मेरे पास में क्या तुमको हुआ में क्या हो रहा था? क्या हुआ था? So I mean, why are you picking up something that is already happening? Yeah. So ठीक है. So I think we've had our discussion and आप लोग comments में बताइएगा what you think. Number 2, very quickly, The Crown and Humayun Saeed. Rabia hasn't watched it yet. I haven't watched it yet. All we both watched is that one clip which has gone viral on Twitter in which Humayun Saeed is kissing Humayun Saeed's character. Clear that. Humayun Saeed's character, Dr. Hasnat, is kissing. But that is Humayun Saeed. इसने ये That is Humayun Saeed. या कोई और आ गया. That is Humayun Saeed as that character kissing that heroine, right? Yeah, kissing the heroine Elizabeth Debicki, who is Princess Diana in I don't know which episode. तो हमको देखना है हमें. But a lot of people are tagging and saying कि आपने अहद रजा मीर पे ये बातें करी थी, आपने यहाँ क्यों नहीं करी बातें? अच्छा, नंबर 1 जब हम देखेंगे हम बात करेंगे उसके ऊपर. मेरा कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, राबिया का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा. So look forward to that. I don't want to say anything now. It's too early for us as a team because we want to watch it before we say anything. I'm very clear. I'm very clear. मैं अभी भी बोल सकती हूँ. Well, I don't want to have another discussion. We have 6 dramas, so let's hold that. And it's like a teaser for all of you. आप इंतजार करें, हम करीब इसके ऊपर बात करने वाले हैं. Let's start. Which drama are we starting with? दरार और मेरी शहजादी. दरार. हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलूं दरार पे, क्योंकि इरहा जो है I cannot understand. Pregnant है. तो क्या दवा Ira's pregnant. करना बंद कर देता है प्रेगनेंसी में लोगों का? Are you trying to say that? Well, I can go to that point also and give you some biological medical information, but I'm not going to go there. Irha is stuck. She's on bed rest. She's stuck in the room. She's trying her best and it's not working. Although I do agree with you कि yes. हर वक्त उसका मियाँ और उसकी बहन बाहर होते हैं, आपको बताए बगैर चले जाते हैं. आपको इसमें कुछ अलार्मिंग नहीं नजर आ रहा. And you are trying to defend, वो पुलिस स्टेशन गए होंगे. What are you really? I think she's in denial. She's in 100% denial because जब उन्होंने चचा को बुलाया तो I thought कि वो ये बताएंगी या कहेंगी कि मैं नहीं बता सकती. उन्होंने तो कह दिया कि शहीद बहुत परेशान है और वो उनकी मेड की कहानी सुना दी, which was not even important to what is happening in the house right now. So there is something off in what she said. That whole thing about the dupatta. I would be and the apology. I would be so mad कि हेलो, मतलब वो बाद में भी उससे बात नहीं कर रहा जब वो कॉल करती है दूसरी केस में और कह रहे तुमने कुछ तो किया होगा. तुम किसी और के लिए इस तरह बात कर रहे हो. I mean, there are so many signs that she should have picked up. So the only thing I can say is that कि वो डिनाइल में है, उसके सामने ये चीज है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है. एंड आई थिंक मे बी बहुत सी औरतें ये करती हूँ बिकॉज they can't bear it. They can't bear the truth. Yeah, they can't bear it. I think that point about the dupatta was actually more than just the dupatta and we all knew it. तो वो इसलिए इतनी इमोशनल और जज्बाती हो रही थी because there she उसके दिमाग में जो चल रहा था ना राबिया, वो उसको हटाना चाह रही थी. वो कह रही थी it is only the dupatta, but actually she knew it's something more. जो वो कह रही थी बार बार कि I don't want to share anything, I don't want to share anything. So that was coming from there. मेरा सवाल ये है आपसे कि is Shahir really thinking of marrying Sajjal या वो उसको बेवकूफ अच्छा, बना उस रहा पे है? मैं आती हूँ. उससे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो सारा प्रोसेस था ना, मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा, मुझे गुस्सा भी आता है उस पे, लेकिन मुझे लगता है शाजिया, अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो आई एम थिंकिंग शी इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ वुमेन. उसने कोशिश की कि अगर शहीर इसमें मेरा साथ देगा तो मे बी, मुझे उम्मीद है, बट उसने रियलाइज किया कि नहीं. तो अब वो इस प्रोसेस में है जहाँ उसको सबकॉन्शियसली पता है कि क्या हो रहा है, बट वो उसको डिनाई कर रही है कॉन्शियसली. Yes. शी इज होपिंग हाँ. मे बी द वेव this will go away and Shahir will come back.
I think this is Yeah. what psychologically is going on with her, because बहुत सी औरतें, बहुत से लोग situations को avoid करते हैं जिनमें उनको पता होता है कि सच्चाई क्या है, वो हार जाएंगे, ठीक है, या वो उस truth को face नहीं करना चाहते. So I kind of find it interesting. It's just too much of a drag. I wanted to move faster. You know, I'm tired of Yeah. watching the same things again. हाँ. लंच पे जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, इरहा को बेवकूफ हो बना गया ना, खत्म करो. खत्म हो गया यार. आई मीन बिफोर जब चचा बैठे भी थे, बिफोर दे वॉकड इन, मुझे पता था अब दोनों हंसते खेलते आएंगे, अपना हाँ, बैग शॉपिंग का पकड़ के और ये होगा. जाएंगे. सो नाउ इट्स बिकमिंग प्रिडिक्टेबल. Yeah. But yes, you are right. She did call Shahid in the morning because she was feeling neglected, and फिर शहीद से वापस उसको वो मिला, तो that should have sort of told her कि things are. लेकिन back to my question. And हाँ, I will you answer wanted this. to. And I feel all the women who, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन में हो भाई, लेकिन ठीक चार्ज देर तक पड़ी सोती मत रहे भाई. आपकी तबीयत जैसी भी है, इतना तो हो सकता है कि आप मियाँ के उठने से पहले उठें, उसका नाश्ता बनाने खुद जाएं, वॉक करके जाएं. वॉक तो बिल्कुल नहीं बंद कर दी ना, बाथरूम तो जा रही हैं. सो या ऊपर से बैठ के यू कैन मैनेज. देयर आर वेज ऑफ मेकिंग श्योर दैट यू आर देयर टेकिंग केयर ऑफ योर ओन होम. मतलब ये कोई भाई इस बच्चों का खेल नहीं है. आप किसी को अपनी चीज छोड़ सकते हैं. आप जगह खुली छोड़ेंगे, लोग अंदर आ जाएंगे. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई एक्चुअली थॉट कि शायद वो उससे मोहब्बत करने लगा बिकॉज वो उसको कहता है आई लव यू. लेकिन जैसे ही ज्वेलरी शॉप में वो उसको बोलती है ना मुझे आपका नाम चाहिए, तो वो बिदकता है. He goes back and he says, तो से मुझे पता लगा ओके नो ही इज नॉट. ही इज वक्ती तौर पे वो उसके अंडर इन्फ्लुएंस है, वक्ती तौर पे वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. बट आई डोंट थिंक शहीर किसी से भी शादी करेगा, सजल हो या वो दूसरी औरत हो. इरहा विल बी हिज वाइफ एंड he'll keep doing these kind of हरकतें with other females. Yeah. What do you think? And I think Sajal is a very good replacement. I completely agree with you because right now he cannot be with Irha. Yeah. He cannot be with her physically as well because she's on the, and he has, because उसकी जो दूसरी वाली है इस्लामाबाद में या लाहौर में, से कहा तुम तो अकेले Yeah. नहीं सकते, तुम कि उसने सही पकड़ा उसको. So abhi till now, until she has the baby, until she becomes okay, Sajjal is going to be his past. क्योंकि वो अब किस तरह खींचता उसको सज्जल को, क्योंकि सज्जल जो है now she wants more. She is not going to be happy like this. और जब चचा को पता चल जाएगा फिर तो बहुत ही ज्यादा हंगामा होगा. So that is going to be the track कि अब आगे he will come to a point where he has to decide. वो कहाँ जाएगा ये हमें भी नहीं पता where he is going to go. तो मुझे लगता है शहीद जैसे लोग होते हैं ना, वो बातों का जादू चलाते रहते हैं और वो वीकनेस पे औरतों की काम करते हैं और उन्हें पकड़ के रखते हैं. जैसे उसने सजल की वीकनेस पे काम किया हुआ है, वो उसको इतनी दूर ले जाएगा जहां पे सजल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा सवाई इसके कि शी विल गो ऑन विद व्हाट ही इज डूइंग. वो नहीं कर सकेगी कुछ और भी. He's playing both sides very well. He's playing both sides. So it's going to be very confusing. I would be, because ये ड्रामे की कहानी ऐसी जा रही है राबिया कि it is very depraved and it is जो भी, और हम देख भी रहे हैं. I want to see कि अब सज्जल जो है should turn around for some sort of revenge. तो फिर वो जो मैं fatal attraction वाली बात कर रही थी ना, तो फिर थोड़ा interest, otherwise ये ड्रामा जहाँ जा रहा है हम सबको पता है कहाँ जा रहा है. So it's sort of losing my interest now क्योंकि हम कब तक देखेंगे. Okay. मेरी शहजादी जी. सो हम में बहुत कंप्लेंट्स थी कि दानिया कुछ कह नहीं रही है कुछ, और पिछले एपिसोड में हम कह रहे थे कि वो नानी की जो उन्होंने डेथ दिखाई थी वो इतनी लंबी क्यों दिखाई थी, इतनी नसीहतें. तो दानिया ने उनकी बात सुन ली, उनकी नसीहतें सुन ली और उन्होंने उसके ऊपर फौरन जो है तवज्जो दी है एंड एक्शन लिया है. व्हाट डू यू थिंक? हाँ वो सब तो सही है, बट एंड आई एम ग्लैड टू फाइनली सी दानिया डूइंग समथिंग और वो कोशिश करिए. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट शहरोज? उसका कैरेक्टर तुम्हें, डू यू आल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम? डज ही आल्सो कन्विंस यू ऑफ कि नहीं नहीं तुम मेरा साथ दो? डज दैट हैपन टू यू? It does. That is, you are so right, Rabia. क्योंकि जब वो वहां, अच्छा देखो, वो जब उससे बात कर रहा होता है ना अपनी अम्मा से और वो कह रहा होता है कि नहीं मेरा बच्चा भी है साथ और मुझे बात करनी है उससे, तो और जब वो पिछले एपिसोड में भी जब वो घुटने पे गया था तो वी सेड ओके शी इज हिज ट्रू लव. एंड फिर अम्मा चाबी देती है कि भाई तुम उसको अपनी तरफ करो, उसके साथ बच्चा कर दो तो वो बन जाएगी. लेकिन जब वो बात करता है ना दानिया से, तो he does not look as if he is covering up or pretending. He looks like he is concerned. अच्छा, और फिर सब बोल के ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें बता के कर रहा हूँ सब कुछ. मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मेरी मोहब्बत वहां तक उस, या मोहब्बत नहीं है, एक्चुअली he said it very clearly. लेकिन ये सब चीजें हैं, ये दर्जा है, सब कुछ है और तुम खुश रहो इसके अंदर.
अभी तक उसने एक दफा गुस्से में नहीं बात करी है दानिया से, एक दफा भी नहीं मैं करी है। वही कह रही हूँ कि So शहरोज she का is doing a कैरेक्टर fabulous job. शहरोज का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है. देयर इज समथिंग अबाउट हिम, लाइक he is ruthless, he's mean, he's selfish, but then there is this softness about him, this charm about him कि वो दानिया को भी पटा लेता है, वो हमें भी पटा लेता है, वो कैम को भी पटा लेता है, and he's going on with his things. कैम ने बहुत बड़ी गलती की है उसके अगेंस्ट जाके, बिकॉज उसने उसके दिल में जो, बिकॉज वो मोहब्बत करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो उससे उम्मीद रखता था कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगी. ऑल तो ये भी गलत है कि मोहब्बत भी कर रहे हैं आप, उससे कुर्बानी भी मांग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तुम बर्दाश्त भी करो, और अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम बेवफा हो जाओगी. तो ये ड्रामा जो है ना, ये मुझे मुझे ऊपर नीचे करता था. कभी मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कभी बोरिंग लगता है. सो व्हेन आई एम लुकिंग एट ऑल दीज एंगल्स के शेरोज का कैरेक्टर कैसा है, एंड ऑल दिस वफा एंड जुल्म एंड ऑल दैट वो, तो इट यू फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग कि ये कितनी साइकोलॉजी, मर्दों की और ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी इसमें डाली हुई है. और कासिम अली ने बड़ी अच्छे तरीके से इसको डायरेक्ट किया है. आई एम रियली enjoying some of the episodes जब ये ऐसी होती हैं चीजें. The juggling of the characters. So what I find interesting is Rabia कि शेहरोज has a sense of entitlement जो उसको दिया गया, वो समझता है कि कैम भी मेरी बात सुनेगी, कैम को खुश रहना चाहिए अमेरिका में बच्चे के साथ, and should not want anything more because she has my love. And दानिया को भी यहाँ खुश रहना चाहिए क्योंकि उसके पास बाकी सब कुछ है, मोहब्बत नहीं है. तो प्रॉब्लम क्या है, सब आपस आपस में. अच्छा, एंड आप पहली दफा मुझे उसकी पॉलिटिकल होशियारी समझ आ रही है. उसने जिस तरह अल्मास को चुप किया ना गाड़ी के अंदर, he said, because अब इन्होंने किसी को नहीं बताया हुआ, ये सिर्फ हम अम्मा का, अतीका और शहाना के कैरेक्टर से देते थे कि नौकरों के सामने, हाउस होल्ड हेल्प के सामने मत बात करो, किसी को नहीं पता है, जबकि कैम रह कर गई है उस घर में से. सो आई एम लाइकिंग, और जिस तरह उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करी, और जिस तरह उसने हाथ रखा उनके नाना के ऊपर, एज इफ उनको दीदी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है. सो ऑल दैट इज ब्रेकिंग. एंड देन व्हाट यू हैव टू से अबाउट दानिया? उसकी वैसे शेरोज के अंदर ये सब कुछ माँ से ही आ रहा है. दानिया के बारे में आई एम जस्ट, एक तो ये कि मैं यही सोचूं कि एक तरफ आप कैम को देखें तो वो रिवेंज करिए, दानिया को आप देखें तो मोहब्बत है. मोहब्बत उसको ये सब करने पे मजबूर कर रही है कि वो इतनी, बिकॉज शी हैज फॉलन फॉर शेरोज, तो उसको ये चांस नजर आ रहा You है. think she's doing it out of love? मुझे लगता है हाँ, बिकॉज क्योंकि देखो, अगर उसने अगर दादी की बातों को पकड़ा है और वो मोहब्बत को हो गई है, तो वही सोचिए कि कैम ने तो अब गलती कर दी है, दिस इज द बेस्ट चांस टू गेट रिड ऑफ हर. एंड मैं अगर साथ खड़ी रहूंगी तो कैम तो गई, मैं साथ दूंगी तो ये मेरी तरफ आ सकता है. एक फॉल्स उम्मीद तो है ना उसके दिल में. ये और बात है कि अब इंटरेस्टिंग मुझे यही लगता है कि देखो, मोहब्बत ने एक लड़की दानिया जो इतनी अच्छी दिखाई है, जो हमेशा हक की बात करती है, जो गरीबों की मदद, वो अब कैम का हक मार रही है. वो शी वांट्स टू किक हर आउट. शी नोज के ये गलत है कैम के साथ जो कुछ हो रहा है. शी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट वाइफ, बट मोहब्बत इज मेकिंग दानिया डू इविल थिंग्स, दैट्स व्हाट But I don't blame दानिया क्योंकि दानिया को बताया नहीं गया था. अगर दानिया के साथ भी बुरा नहीं, when you enter into marriage as a second wife, you have to know कि आप किससे शादी कर रहे हैं. उसकी शादी हुई भी है, उसका बच्चा भी है. She didn't know that. तो I don't कैम का blame तो her for कसूर doing नहीं है ना. it. कैम को भी इसमें, कैम का कसूर तो नहीं है. कैम ने तो नहीं उसके साथ ये किया, कैम के साथ तो खुद ज्यादती हुई है. ऑल आई एम सेइंग इज दैट what Dania is doing is most probably every woman will do. कोई भी औरत अपने शायद हस्बैंड को नहीं शेयर कर सकती है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मोहब्बत और रिवेंज, और पागल जब औरत हो जाती है किसी भी चीज में, मोहब्बत में या रिवेंज में, तो वो क्या करती है. कैम को देख लो कि उसने क्या किया. वो अपनी सास से रिवेंज लेना चाहती है. उसने उसको जो जाते हुए जिस तरीके से उसको निकाला है, वो कैम भुला नहीं पा रही. उसने मोहब्बत सब साइड की, उसने कहा मैं बताती हूँ तुम. और दानिया इधर मोहब्बत में पागल हुई जा रही है, वो मोहब्बत के पीछे ये सब कर रही है. कैम तो कर रही है दानिया. आई नॉट श्योर. हाँ, शायद मोहब्बत की वजह से करी कि उसने दो बोल प्यार के बोल दिए, लेकिन आई थिंक जिस तरह नानी ने उसको समझाया, क्योंकि उसने अल्मास के साथ जाके सीधा टकराव किया है कि अल्मास तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहती, तो उसको तुम कभी मत बताना अगर तुम्हारी और शहरोज की लड़ाई हो, बिकॉज शी विल एंजॉय इट द मोस्ट. बट उसके सो पास उसने ऑप्शन, सीधा जाके उससे कहा. तानिया के पास बहुत क्लियर ऑप्शन है. शी कैन जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम बैक, बट शी इज नॉट, शी इज स्टेइंग देयर. सो जो तुम बात कह रही हो He's वो not. ठीक है, बट आई एम सेइंग हाँ. लाइक दैट दानिया इज चूजिंग टू स्टे देयर. अब वो वापस आ सकती है, बट वो नहीं आ रही. तो इट्स बिकॉज शी, या यू थिंक कि वो गिल्टी फील कर रही है, विच इज लाइक रियली सिली, कि वो अपने ताया के लिए गिल्टी फील कर रही है कि उनकी
खानदानी बहू ये ना करे तो शी इज डूइंग नहीं, या वो तो गया, वो तो कहानी गई। I really liked Urwa Hussein's acting, by the way. जिस तरह उन्होंने जो है ना वो कुक को और उनको खान सामे को और उनको भी बड़ी कन्विंसिंगली बात करी, जिस तरह राबिया लड़कियां कर सकती हैं बात की, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। एंड आई लव द वे शी आंसर बैक अलमास, शी सेड नहीं मैं तो अभी वापस जाऊंगी, अगर वो वहां है तो आई विल आल्सो गो विद। तो मुझे ये which is what we were waiting and we are so happy to see this change in Dania that we wanted to see. तो अभी यहाँ हमें कैम का भी मजा आया था, कैम ऑपोजिट। अच्छा, and one last thing we'll come to later very quickly on Atika Odo, वो हमें मजा आया था द फेस ऑफ, और यहाँ तो दोनों बहुएं जो है वो बात कर रही हैं, चुप नहीं रह रही कोई भी। true अभी डन ऑन मेरी शहजादी, and I just want to mention Atika Odo, I'm absolutely loving her performance। वो जो बैठ के उसको जब डांट सुनाती है ना कि तुम जाके ये करो, अभी सीधा करो, द मेस यू मेड, नाकाम आशिक, द मोमेंट शी सेड नाकाम आशिक, I burst out laughing। She was just fabulous, and even in the last episode when she was doing that face off with Cam, I am really enjoying it। मुझे लग रहा है कि इस कैरेक्टर में शाहाना doesn't have to hold her words back। true she is saying what she has to say और वो खुल के perform कर रही है, so it's really enjoyable। yeah okay Okay, we come to Babal। we come to Babal। आप अभी भी नाराज हैं फराज से या आप थोड़ी सी calm down हो गई? नहीं, Faraz is really testing my patience, I'm sorry। I'm लेकिन मैं उसके साथ साथ शाजिया अपने आप को भी क्वेश्चन करी थी कि here is a guy who is being supportive Exactly। और हमें उस पे भी मसला है, सो हम क्या है, हम मुझे तो कोई मसला नहीं है। I love him। No, I love Faraz's character। What is wrong with Faraz is him having Anam as a life partner। Faraz is doing all the right things। He's not a टेढ़ा character। वो twisted नहीं है, वो बड़ा सीधा है, और वो he doesn't let people walk all over him also, क्योंकि he was ready to chuck her out। वो तो अम्मा की वजह से उनकी आप जनाब में वो रुक गया अभी, क्योंकि अम्मा has begged him कि नहीं करो, हम नहीं संभाल सकते। वही ना, तो he is letting people walk over all over him। अनम बहुत बदतमीजी करती है, अनम को कोई तमीज नहीं है। एंड ठीक है, अनम के माँ बाप ने जो अनम के साथ किया वो गलत था, लेकिन फराज का तो इसमें कोई कसूर नहीं है दैट ही हैज टू पे अ प्राइस। उसको खाना नहीं मिलता, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, और उस पे इतना प्रेशर, अभी घर की किस्त, वो कह रही है गाड़ी ले लो। सो आई फील बैड फॉर हिम एंड आई जस्ट फील दैट he should give her a big shut up call and really like, because अनम एक ऐसा केस है जो ना प्यार से मानने वाला है ना गुस्से से मानने वाला है। मतलब अनम, मैं यही सोची थी कि ये जो कैरेक्टर है ये सुधरेगा कैसे, ये नहीं सुधरने वाला कैरेक्टर। हाँ, और मैं सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता शायद प्यार मोहब्बत से शायद सुधर जाए, लेकिन अनम needs a catastrophe to happen which is unfair। and why do we need that? अनम को at least ये, and girls like अनम, because I believe to a some extent shades होती हैं हम सब में, या स्पेशली जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, वो कंपेयर करे कि उसकी शादी से पहले क्या जिंदगी थी और शादी के बाद अब क्या जिंदगी है। एंड दिस इज डेफिनेटली बेटर। she is going to school to college, no one is asking her anything। वो घर पे जो उसको करना है उसको सारी आसाइशें भी मिल गई जो उसको चाहिए थी। so I think she needs to be a little more grateful for what she has, which she's not doing। she's not doing that। so वो तो एक डिमांड के बाद दूसरी डिमांड, तीसरी डिमांड, उसकी तो कोई शी इज नॉट स्टॉपिंग। एंड दूसरी बात ये, आई जस्ट फील शी हैज नो रिस्पेक्ट फॉर फराज, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। अगर उसको कहीं से आपको जेन्युइननेस नजर आती, कहीं से आपको रिस्पेक्ट नजर आती, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड। सो मुझे लगता है कि फराज नीड टू पुट हिज फुट डाउन एंड बी अ लिटिल फर्म विद हर। वो जितना उसको बोलता जा रहा है ना, वो सुनने वाली नहीं है। The problem is कि अनम has this pretend life ना, जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि वो अब दोस्तों से मिली है, अब she has to keep that up। वरना तो जैसे हम कह रहे थे कि भाई तुम खुद ही कॉलेज जाओ, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, ले आना गाड़ी भी, लेकिन इतना इंतजार नहीं है। A big problem with her personality is patience। she wants everything now। अभी चाहिए हर चीज। अब उसकी दोस्तों को तो पता चल गया। आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि इसके साथ होगा क्या है, व्हाट विल शी डू, वो क्या करेगी। बट होगा बहुत बुरा अकॉर्डिंग टू द OST और समथिंग व्हिच आई फील इज आल्सो, वो एक बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाएंगे जो आई विश ना दिखाएं, बट लेट्स सी। देयर इज समथिंग मिसिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ड्रामा व्हिच आई कांट पिन पॉइंट। अब दूसरी तरफ आप दूसरी बहन का केस ले लें, वो जो उनकी टीचर के साथ है, इतना फ्लैट सीन शाजिया, आई वाज लाइक ये क्या है, ये क्या दो रोबोट्स बैठे हुए, नो जज्बा।
nothing. There is no chemistry, there is no Yeah. spark, there is, I mean, I was like, मैं क्यों देख रही हूँ? Why am I wasting my time? So I really Yeah. don't understand what was the need to have that scene in the first place, and second, execute it in this way. It could have been a very What was the yeah? जब वो What was the need to have that relationship? आप yeah तलाल को देख लें, इन फ्रॉड तलाल है माइला को देख लें, आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आप कैसे कर सकते थे. वो yeah भी एक सपोर्ट कैरेक्टर ही थे. So yeah either don't do it, don't have that storyline, or make it something we enjoy watching. शगुफ्ता के साथ वही हो रहा है जो उसने अपनी मालकिन के साथ किया था, वो जो लड़की है. दैट्स इंटरेस्टिंग. मकाफाते अमल, बट शगुफ्ता को भी पता चल गया है. अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया था. आई लाइक इट कि वो आयत जो है, कुरान की सूरत जो है वो चल Yes. रही है, and उसको डर लगता है, वो जाके बंद कर देती है. Yeah, that was very interesting. तो I like, again हम execution की बात कर रहे थे, कुछ चीजें बड़ी मजे की भी दिखा रहे हैं, interesting connection, लेकिन something is missing, and I think वो यही है कि जैसे अनम की दोस्तों का हमें connection और जिस तरह का उनका वो समझ नहीं आ रहा. शगुफ्ता की स्टोरी, आई थिंक फॉर मी द प्रॉब्लम इज कि दोनों को साथ साथ चलाना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कनेक्शन इज मिसिंग समवेयर, क्योंकि ये हम पूरी कहानी देख रहे हैं जो हम पूरा एपिसोड देख सकते हैं सिर्फ इन्हीं की कहानी के लिए. फिर जब शगुफ्ता की आती है हमें याद आता है, ओ शगुफ्ता भी तो है यहाँ. अगेन माहम और उनकी जो टीचर की है वो कहानी तो बिल्कुल ही लाइक डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम everything that's happening. So agreed, that is happening. Lekin again, we are going round in circles because we know all this with Shagufta. So we want to know what's going to happen next. अब क्या होगा आगे? So that's the thing. ठीक है. पिंचा Okay. पिंचा बहुत स्केरी था यार. शाजिया इस बार वो जो बच्चे को दिखाए, जिस तरीके से उसको ड्रग्स इंट्रोड्यूस होती हैं, दैट इज सच अ रियलिस्टिक सिचुएशन कि बच्चे जब परेशान होते हैं, जब वो घरों से उनको कंफर्ट नहीं मिलती और वो बाहर जाते हैं, तो इतने लोग हैं जो आपको किसी भी चीजों में ना इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी शामिल है, जिसमें अब्यूज भी हो सकता है, जिसमें ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, जिसमें चोरी का भी कुछ हो सकता है कि बच्चों को किसी तरीके से इन्वॉल्व कर लें. हर किस्म की चीज हो सकती है. उसको जब वो बच्चा आया था, मैंने तुम्हें पहले से कहा था ना, ये बच्चा जो है ये कुछ That's trouble. हाँ ट्रबल. Yeah. इस बच्चे की भी हाँ. कहानी है. उस बच्चे ने भी कहा कि Yes, and that's what's so important कि उन्होंने सिर्फ ये, उन्होंने जब बच्चों को दिखाया है ड्रग यूज करते हुए, तो ये नहीं दिखाया कि हमारी सोसाइटी का एक नेगेटिव फैक्टर है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए. उन्होंने ये भी दिखाया कि ये क्यों हुआ है. And we are responsible for that, Rabia. We are not looking after our children the way we should be looking after them, which is why this is happening. और इसको सिर्फ एक एंड से डील करना कि अपने बच्चे से वो ड्रग्स छीन लिए is not enough. What is happening in that child's house? What are we doing as a society, as neighbors, as family, as relation? As मैंने बल्कि तुम्हें message किया था the other day about our trust, because I knew of someone who needed help and I didn't know who to turn to. So when we see this again, अब वजीहा is a person who should be, उसको पता है और उसका जवाब, although we all said, oh but वजीहा क्या करे, she's not the parent, it's not enough. Wajiha needs to do something because Wajiha knows things are going wrong over here. क्या करे? क्या कर सकते हैं या अब मैं ये करें, अगर उसको ड्रग्स का पता चले, अगर उसको ड्रग्स का पता चले, she needs to have an alert and it should be I a think very clear alert. nobody will find out about the drugs. Again, वजिया उसके घर पे नहीं रहती तो उसको तो ड्रग्स का पता नहीं चलेगा. जो माँ बाप हैं, इनफैक्ट घर में सभी ने नोट किया कि अबान जब दूसरे दिन सुबह आता है तो उसकी अपीयरेंस नहीं सही है, ही इज लॉस्ट. नोबडी थॉट कि ऐसा क्यों है, बिकॉज दे आर टेकिंग इन दैट वे कि ये तो बस ऐसा ही रहता है. So yeah, so it's in a way interesting to see how the psychology works and how sometimes हम लोग कुछ चीजों को डिसरिगार्ड कर देते कि ये तो ऐसा ही होगा, ये तो ऐसी ही होगी, ये तो ऐसा ही कहेगा, without going deeper, Yeah, you are completely right. I also feel that तुम कुछ बात कर रही थी और मुझे कुछ ख्याल आया था उसी के उससे. हाँ, I wanted to talk about the guitar breaking. वो कितना खौफनाक सीन था राबिया, लेकिन उन्होंने उसको इतना नॉर्मली लिया, उन्होंने उसके ऊपर इम्पोर्टेंस ही नहीं दी. अब okay, I know that they were not physically in his room, they didn't see it. I don't think उस बच्चे ने खुद ही सब सफाया किया होगा जो मैस हुआ था, तो किसी ने तो देखा होगा ना कि क्या हुआ था. That child is disturbed and people cannot see it. उनको एक ही तरीका आता है सही करने का, इसीलिए मैं कह रही हूँ शुरू से that Javed and the whole family needs to go for therapy. My question to you is,
Do you think when Khatija found out कि Abir के पास फोन था in the previous episode, Yeah. that she should have had a talk, उसने पहले तो कह दिया कि बाबा को तो पता ना चले, तो I don't think she has told Baba. Do you think she should have thought about giving Abir a phone? या ये फैमिली बहुत डिफरेंट है, सो इस फैमिली के लिए आंसर्स देना इतना आसान नहीं है। और इनकी ये फैमिली वो फैमिली भी है जिसमें आप ये नहीं कह सकते बी कर लो सी कर लो, नहीं। इनको सबसे पहले ए से भी पहले -0, ए से भी पहले पता नहीं क्या एक पूरा ब्लैंक पेज जिसपे लाइंस जैसे लगाते ना, डॉट्स लगाते होते कि जी भाई अब इस पे हम अल्फाबेट्स लिखने लगेंगे। उनको ये सब तैयारी करनी है। शी फर्स्ट नीड्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद हर डॉटर। शी नीड्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, द नीड्स ऑफ हर डॉटर, हैव अ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज विद हर। तो मैं भी ये नहीं कह सकती कि वो अबीर को फोन देते, क्योंकि अबीर इज नॉट प्रूविंग टू मी दैट शी डिजर्व्स अ फोन। सो मैं दोनों केसेस में ऐसा नहीं कह सकती। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे माँ बाप को सबसे पहले एक दूसरे के साथ क्लियर होना चाहिए। उसने बाप से ये बात छुपाई, विच आई डोंट थिंक पेरेंट्स शुड हाइड थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। और दूसरी बात ईशा से, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। फिर बात छुपाई, फिर जब उसको लेके अबान को लेके जा रही थी वजीहा के घर, तो वो भी छुपाया उसने, मत बताना। एंड दूसरी बात ये, उससे सबसे पहली बात ये देखें, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी कल शादिया, उन्होंने कहा, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू कनेक्ट इट विद दिस। उन्होंने कहीं मैंने पढ़ा, जब आप कहते हैं ना कि बेटियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाएं तो फीमेल डॉक्टर के लिए मत पूछिएगा। तो ये सब चीजें कनेक्टेड होती हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि औरत को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, तो वो इसलिए भी उठानी चाहिए क्योंकि आज वो अपने लिए आवाज उठाएगी तो कल वो अपने बच्चों की को भी प्रोटेक्ट कर सकेगी। और प्रोटेक्शन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी बहुत गलत चीज के अगेंस्ट बच्चे को प्रोटेक्ट करें या आप सोसाइटी। कभी कभी आपकी अपनी फैमिली जिसकी इंटेंशन अच्छी होती है, वो उसकी अच्छी इंटेंशन आपके लिए बुरी बन जाती है। जैसे इस केस में जावेद बुरा तो नहीं चाहता। उमेर राना का इंटरव्यू इज सो गुड, अगर तुम सुनाओ। उमेर राना has convinced all of us that जावेद बुरा नहीं चाहता। मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने ऐसा डिफेंड किया जावेद को। He's right. He's Javed does not want bad for his. It is his wish कि उसके बच्चे अच्छा करें. It is his wish कि उसके बच्चों को चोट ना लगे कि वो ये चीजें कर रहा है. But माँ बाप और हम as people also sometimes forget कि नहीं, कभी कभी हमें चेंज होना है या हमें लोगों को गलती या करने का मौका देना चाहिए, because that's the only way they can learn. So ऐसे में अगर औरत अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करे, अपने लिए आवाज उठाए, जो अगर खतीजा ने की होती कि उसको म्यूजिक का जो था और वो जो काम थोड़ा बहुत बाहर कर, मतलब उसकी सारी जिंदगी जो है वो बच्चों और जावेद के गिर्द है और वो जावेद की पसंद नापसंद, उसने अपनी एक पोजीशन बनाई होती तो वो आज बच्चों के लिए भी जावेद से बात कर सकती थी। जावेद डज नॉट टेक हर सीरियसली, उसकी कोई बात मानी नहीं जाती। इट इज ऑल इन द लास्ट जावेद की कॉल होती है, एंड खतीजा हरसेल्फ इज नॉट हैप्पी इन हर लाइफ। सो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। Yeah, there are 2 or 3 things. You are right कि this family is not there. 2 or 3 things happening here. Number 1 कि जावेद एंड खतीजा एंड पेरेंट्स लाइक जावेद एंड खतीजा, वो जब पैदाइश हुई थी और जिस तरह उनका ब्रिंगिंग अप हुआ था, तो वो शायद इसी तरह हुआ होगा। सो दे फील दिस इज वीव टर्न्ड आउट ओके, एंड हम सारी दुनिया की बुराइयों से दूर रहे हैं, तो ये भी हमारी तरह ऐसे ही होंगे अगर हम वही उसी पटरी पे चलते रहें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दुनिया इवॉल्व हो गई है और यू वांट टू कीप योरसेल्फ इन अ बबल, एंड दिस इज व्हाट वी सी विद खतीजा एंड जावेद। सेकेंडली राबिया, जो तुमने बात करी कि औरतों को आवाज उठानी चाहिए अपने लिए ताकि वो अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं, अनफॉर्चुनेटली इट वर्क्स द अदर वे अराउंड फ्रॉम व्हाट यू एंड आई हैव सीन कि लोग अपने ऊपर तो कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चों का सवाल आता है ना, तो देन दे कैन नॉट टेक इट, और फिर वो औरतें आवाज उठाती हैं। वो कहती हैं हमने तो सह लिया, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं सहने देंगे। A lot of the time divorces happen later in life because women will take the abuse, they will not let their child take the abuse. So this is what we are finding frustrating as viewers, Rabia, कि खतीजा अभी भी आवाज नहीं उठा रही है। अभी भी अबान के साथ जो हो रहा है वो आवाज नहीं उठा रही है, जो औरतें, बिकॉज उसकी ब्रेन वॉशिंग इतनी ज्यादा हुई हुई है, और वो भी उस अपब्रिंगिंग से आई है कि औरत को सुनना पड़ता है आदमी का, एंड दैट पर्सन इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो शी इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हर ओन डिसीजन। शी इज थिंकिंग हाँ जो जावेद कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा, आई हैव टू लिसन टू हिम। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मेरा पहला रिस्पॉन्स ये था कि उसको पता नहीं है कि अबान के साथ क्या हो रहा है। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, अबान की सुसाइड वाली अटेम्प्ट तो उसके सामने है। हाँ, शी डजंट नो अबाउट द ड्रग्स, लेकिन शी डजंट नो कि अबान ने सिग्नेचर झूठे वो किए हैं। बट
सुसाइड, इन दोनों से ज्यादा बड़ी चीज तो सुसाइड था जो कि उनके सामने, बट उनको नहीं समझ आई। सो यस, यू आर राइट के बट वही बात है ना शाजिया के, अगेन अब मैं वही बात बोलूंगी, अब्यूज, ओके आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड अब्यूज, लेकिन जब औरतें सबमिसिव हो जाती हैं जहनी तौर पे, या कोई भी इंसान इन दैट मैटर, बिकॉज बच्चे जो मर्द बच्चे हैं, लड़के मर्द बच्चे जो हैं वो भी जब सब जहनी तौर पे उनको आप ओवर पावर कर लेते हैं, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर somebody टू स्टैंड अप, एंड यू नीड somebody जिसको झंझोड़े, वो बेखौफ हो। सो इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी फॉर ऑल ऑफ देम दैट आई सी। सो इट्स नॉट इजी फॉर, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खदीजा के लिए खड़ा होना और ये सब करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज वो यहाँ से नहीं कंट्रोल, उसको इंडिपेंडेंस था उसको, जब मैं हाँ बिल्कुल, और हम वो लोग, कन्विंस हो जाती है, वो कन्विंस हो जाती है जावेद की बातों से। not just about being convinced. You do not have the freedom to think. You do not have the energy to stand up on your own mentally and emotionally. And हम लोग अब्यूज को बहुत लाइटली लेते हैं हमारी सोसाइटी में, जो कि हम आजकल आसपास अपने केसेस जो हो रहे हैं और उस पे जिस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं उनको अगर मैं देखूं तो वी द काइंड ऑफ कमेंट्स वी हियर, वी डोंट टेक अब्यूज सीरियसली, वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज हो, या वो कंट्रोल और पैरालिसिस ऑफ योर इमोशंस और ड्यू टू लव एंड यू नो ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, ये इंसान को क्रिपल कर देता है, एंड इट टेक्स अपाहज कर देता है, इट टेक्स अ टाइम फॉर समबडी टू स्टैंड अप, दैट्स हाउ आई फील इट। बट लेट्स मूव क्विकली, क्योंकि हमने अभी 2 ड्रामे और करने हैं, कमिंग टू, You feel correct. I have one critique to make over here very quickly. ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि एनी मदर लाइक खतीजा जो जासूसी में पीएचडी कर चुकी हैं, जो हर चीज चेक कर चुकी हैं, ऊपर से फोन भी, मतलब मैंने सोचा कि हाथ में के फोन, उन्होंने फोन खोल के चेक क्यों नहीं किया कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा था? What was Aviv posting? नो What नो was she doing on her WhatsApp chats? नो, उसने चेक किया जितना वो कर She सकी, did? शी डिड, और वो सीधे तो उसको पता चलता है कि तुम लड़कों से बातें करियो, तुम ये करियो वो करियो, वो उसको मारती इसीलिए तो है, उससे कहती है अब तुम ये नहीं करो। फिर तो और भी ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। खतीजा बहन, आप क्या कर रही हैं? हाँ, आपको नहीं उसने पता सोचा ऐसा मैंने तो क्या? फोन ले लिया, फसाद की जड़ खत्म हो गई। उसने तो ये सोचा, Hmm. उसने कहा जब फोन ही नहीं है तो ये Oh. कुछ होगा ही But नहीं। then she's being very naive. She's being as naive as the other characters we talk about in other, because that's silly. That's Yeah. very silly. I'm sorry. Yeah. Okay. Yeah. We can go on. Next I, drama. I I want to talk about Vajiha's character, which is the single mother, and I'm really liking it. Yes. The drama is talking about so many. The fact कि वो छुट्टी करना चाहती है, उसको छुट्टी नहीं कर पाती है, and it is something so important कि हम mothers को और especially single mothers को facilitate ही नहीं करते हैं, so as a society, as organizations के वो काम कर सकें. So that was a good point, and also the entry of Furqan, कुरैशी's character, जो उनको लिफ्ट में मिले, बड़े frustrated है वो, but so it's going in a different direction. I'm looking Yeah, forward to yeah, watching. yeah, Forward to yeah. So am I. Rabia gets to see some romance hopefully over here, in the future. Lekin, one thing I wanted to point out, people were complaining that Wajiha is just so good. She's doing everything right with her parenting, and Khatija is doing everything wrong with her parenting. I think they are both layered characters to quite an extent. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई फील कभी कभी आपको एक्सट्रीम्स दिखाने होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे ग्रे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, टू ड्राइव अ पॉइंट होम, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है। तो दोनों की अपनी अपनी महरूमियां दिखाई हैं कि वो अपने मियाँ से लड़ रही है, वो अपनी जॉब से, शी हैज टू, अब खुदा ना खास्ता अगर अबील किडनैपिंग वजीहा for not being in town, you can't blame Wajiha that she had to leave her daughter. अब उसके बच्चों की स्कारिंग होगी, अभी बच्चे बड़े strong and confident लग रहे हैं, they might or might not be scarred when they get married, and they will have problems with their, or they will have issues trying to deal with certain things in a relationship. ऐसा नहीं है कि वजीहा is perfect. She's trying to do the best she can. Khatija is also trying to do the best she can, because that's within everything that she's dealing with. उसको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे, वो यही कर रही है. So I wanted to say that. Okay, we can go on. Okay, fraud. जी, Okay. अच्छा, मेरा सवाल ये है, भाई माया, आप क्यों नहीं बता रही हैं शान को उनकी शज्जी की असलियत? क्योंकि वो आपका घर यहाँ का भी खाली करेंगे, वो सब वो कंपनीज के अंदर देख रहे हैं, और वो आपकी बहन से उनकी शादी हुई हुई है जो वहां भी उसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो कीपिंग ऑल दैट असाइड, डोंट यू थिंक माया हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी?
माया डेफिनेटली हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन स्टोरी को वो ऐसे ही लेके गए कि माया डरी हुई है कि वो बता देगी तो शान बोलेगा तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और अब वो अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना चाहती, उनका दुख नहीं देना चाहती कि अभी पुप्पो की डेथ हो गई है, अभी छोटी बहन घर वापस आई हुई है। एंड आई थिंक जिमल इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट शी इज नाउ कंसिडरिंग कि एक बच्ची है, उसका दिल टूट जाएगा। मुझे लगता है कि वो अब जिमल को भी कंसिडर करिए, नॉट जस्ट एवरीबडी एल्स। So Maya has a lot at stake, and then दूसरी But बात, now she knows about the mother सबसे बड़ी also. बात अब ये तो अम्मा का भी उन्होंने दूसरा है, चेहरा देख लिया है. सबसे बड़ी बात ये कि शान जैसे मर्द जो है ना, वो ये भी कह सकते हैं तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। वो अपनी माँ के अगेंस्ट तो बात नहीं बिलीव करेगा। व्हाट इज द गारंटी कि तुम अभी जो सब बोल रही हो वो सच है? he can come back and say all of that. Although I feel उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि शादी की तस्वीरें हैं। अभी किसी ने कमेंट्स में लिखा था FIR, वो बड़ी अच्छी बात बोली, ये सब चीजें उसके पास Hmm. हैं। But I think Maya has a lot at stake, and sadly, this is how the story is. So we just have to live with it and see the story moving forward. Well, I'm just loving Shan and Maya's interaction Yes, even yes, now. उनकी yeah. छोटी छोटी बातें जो है ना, कि Hmm. तुम्हें आदत है हर चीज में कीड़े निकालने में, और यहाँ ये बल्कि सबा कमर, I definitely knew she's going to perform like this. I'm loving it that she's getting the dialogues to support what she can do. लेकिन मुझे मिकाल की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है. I feel the casting is excellent between the two of them because I can see a chemistry and a fun factor there, जो मैंने मिकाल के पिछले रोल्स में नहीं देखा था. सो मुझे ये बहुत मजा आ रहा है इस तो रोल में. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी एग्जैक्टली यही बात सोच रही थी। वो जो दोनों का की बात होती है, जब वो उसे कहता है थैंक यू, एंड द वे शी लुक्स एट हिम एंड शी इज लाइक तुम बाज नहीं आओगे मुझे तंग करने से, एंड देन ही सेज इट बैक। सो आई एम जस्ट लविंग। एक तो मुझे इससे रिफ्रेशिंग लग रहा है कि वो टिपिकल वो नहीं है कि वो या शर्मा गई और वो उसके लिए तोहफा ला रही। दे बोथ आर लाइक बैंग ऑपोजिट ईच अदर, एंड दे या वो रखते नहीं है कोई भी वर्ड्स, एक दूसरे को सुना देते हैं। बट स्टिल या they're doing small things which show that they are trying to make the best of the situation they are in. And I'm so glad कि जिमल पे उसकी माँ का असर नहीं हुआ, and she was asking about Maya. I was so happy. Yes, yes, it was very good. I wanted to point out one dialogue that माया ने कहा जब उनकी अम्मा आई और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के पास बहुत जायदाद है और मुझे भी मिलनी चाहिए और तुम भी. तो शी सेड, माया ने जवाब में कहा कि मैंने उसके साथ निकाहनामा साइन किया, मेरा हक है एज अ बीवी कि मुझे मिलेगा. उसने इतनी एम्पावरिंग तरीके से कहा राबिया, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर दैट यू आर एंटाइटल्ड टू दिस. इट्स Yeah. नॉट कि आपको कोई एहसान कर रहा है कोई कि आपको ये मिल रहा है, आपका हक है कि आपको ये मिलेगा. एंड दैट्स वेयर सबा कमर कम्स इन बिकॉज दीज आर द दिस इज व्हाई शी पिक्स अप दीज कैरेक्टर्स एंड आई लव दैट सीन. अब Fraud is going strong. I am liking it because कहानी आगे बढ़ रही है, and you are curious कि अब आगे क्या होगा, what will happen, क्या माया कोई स्ट्रैटेजी बनाएगी, क्या शजी जीत जाएगा, what's going to happen. So it's interesting to keep watching it. It is interesting and it's closing up to a climax now. अब पता चल रहा है क्योंकि प्रोमो में भी वो कार्ड से ही फेंकती है. Yeah. माया उनकी तरफ को कहती है आपको पता नहीं है यही तो था मेरा पहला हस्बैंड. So she didn't actually have to tell him Shan anything. उससे तो सीधे जाके उन्हीं की उसमें फेंक दिया कि अब आप बताएं क्या करेंगी आप. Which is interesting, which is very Yeah, interesting. Yeah. So which is very interesting. And Myla and उनका किस्सा आगे चलेगा. Let's see क्या होता है, how he can redeem himself, and yeah, let's see. Yeah, okay. okay. So we have Bakhtavar. We have Bakhtavar. We haven't read the comments, by the way. I don't know if you have time to read them. मुझे लग रहा I है तुम्हारे पास don't time think नहीं we होगा. have the time today. We will definitely do it next week, Okay, inshallah. okay, okay. ठीक है, जरूर. अच्छा जी, बख्तावर में आपको अब फाइनली बख्तावर पे इरिटेशन हो रहा है कि वो क्यों नहीं और बता रही. अब तक तो बता देना चाहिए था, और इंस्पेक्टर मोहसिन को ही बता देना चाहिए था, if nothing else. बहुत ज्यादा मुझे हो रहा है, और मुझे वही Yeah. हो रहा है कि हम लोग ना इस ड्रामे में भी वही फंस गए। दो तीन चीजें जहां फंसे हुए हैं। वक्तू बख्तावर दिलावर को नहीं बताना, हुलिया वक्तू से चिढ़ रही है। इट्स द सेम लूप अगेन, माँ बख्तावर को बार बार बोलिए, लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो सारी वो जो वुमेन एम्पावरमेंट थी, जो सारा वो जर्नी था बख्तावर का, जिसको देख के हम खुश होते, या हम उसकी एग्जाम से पास होने पे खुश होते, it's all gone flat because we are like यार आगे बढ़ो ना, आगे कहानी बताओ क्या होना है. Okay, so here's what I think is happening. Sometimes आप एक कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं
आप उसको जन्म देते हैं और आप कहते हैं कि ये बहुत फैंटास्टिक कैरेक्टर है, एंड बख्तू इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, लेकिन आप उस कैरेक्टर से इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि आप ये नहीं देखते कि इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं इसके अंदर। बख्तावर doesn't have to be the only heroine of the drama doing everything herself, because it is taking away from all the support characters who can add to Bakhtawar's journey. एंड इट इज मेकिंग इट अनरियलिस्टिक फॉर हर कि वो कैसे अभी तक शीदा के हाथों से बची हुई है। शीदा तो उसको एक दिन उठा के कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी को आगे बढ़ाने का थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। दिलावर मियां आप हीरो हैं ड्रामे के, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि अगर आप हीरो नहीं है तो फिर आहद है हीरो। आहद जो गायब हो गए थे तो ना आहद हीरो है ना दिलावर हीरो है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि where it's, I mean, our expectations from everyone else are falling because of that. That's the issue ना, जब हम वो जो जैसे तुमने लिखा है कि कभी कभी हम कैरेक्टर को इतना इतना फोकस टेक करते हैं कि हम दूसरे कैरेक्टर्स के साथ ज्यादती करते हैं। स्पेशली यहाँ पे मुझे लगता है दिलावर के कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादती हुई है। दैट वाज अ कैरेक्टर व्हिच हैड सो मच potential in it to be written in a great way, and it all went down the drain. So मुझे उस पे मुझे अफसोस होता है कि इतनी मजे की केमिस्ट्री, इतने मजे की चीजें हो सकती थी जो हम नहीं देख पा रहे हैं। वही डल डायलॉग्स है, वक्तू तुम चले गए, अच्छा चलो वक्तू तुम वापस आ गए, चलो वक्तू तुम मेरा स्केड्यूल कर दो, तुम फिक्र ना करो, हुरिया को मैं डील कर लूंगा। एंड इतना, and a guy who could have had such a potential, भाई तुम तो हुरिया से पूछ ही नहीं पा रहे हो तुम्हारी फैमिली ने क्यों शीदे की जमानत कराई है। वक्तू से पूछो क्या मसला है, तुम जाते जाते व्हाट्स द इशू विद यू नो और अच्छा पुलिस वाला है, वो भी उसको सही तरह नहीं कुछ कर पा रहा। सो द स्टोरी इज जस्ट लाइक एक बहुत पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी which I feel is going in pieces because अब वो हैंडल नहीं हो And रहा। actually, I think Rabia, I question the police वाला Inspector Mohsin also. इतनी बड़ी बात आप कैसे छुपा सकते हैं दिलावर से? It's a big thing. देखो तुमने आज Instagram के पोस्ट में सवाल किया है, if I have employed a boy in my office and I find out that the boy is a girl, it is actually a fraud. इट इज अ फ्रॉड दैट यू, वो दूसरी बात है कि बख्तावर के चैलेंजेस थे और वो थे जो भी थे, लेकिन यू आर मेकिंग एवरीवन एल्स अराउंड यू बिलीव दैट यू आर अ बॉय, एंड इट इज, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इंस्पेक्टर मोहसिन टोल्ड हर इन द लास्ट एपिसोड कि तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। मुझे ये शायद इतना बड़ा नहीं लगता, गिवन की नियत क्या है। अगर आपकी नियत किसी को धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना है और फिर आप ये करें तो देन आई अंडरस्टैंड। यहाँ तो एक केस ही डिफरेंट है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जो थे वो बहुत कुछ कर सकते थे टू फैसिलिटेट अ जॉब फॉर बख्तावर हरसेल्फ, टू फिनिश दिस सागा ऑफ बख्तू एंड बख्तावर। वो फिर कहीं और बीच में लेकर आते कि चलो बख्तू की जरूरत है कोई रिकॉर्ड से, तो बख्तू वापस एज मर्द बन के बख्तावर को आना पड़े। समथिंग स्टोरी कुड हैव बीन मोर इंटरेस्टिंग आई फील। अब वो मीडिया पे शीदा जाएगा नहीं जाएगा, वी वांट टू सी, but it's going in a very slow paced manner, and it's testing our patience and we are losing interest. लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैं करना चाहती हूँ। क्या अगर हम ऑडियंसेस होते, अगर हम माशरा होते, तो हमारा क्या जजमेंट कॉल होती बख्तू या बख्तावर पे? नंबर 1। नंबर 2 कि क्या बाद में भूल गई मैं क्या कहना चाह रही थी। तो सवाल का जवाब मेरा तो यही था, यू सेड इट्स नॉट अ बिग डील, फॉर मी इट्स अ बिग डील कि समबडी इज हुडविंकिंग मी, कोई मेरा बेवकूफ बना रहा है, डिस्गाइज में आ रहा है, मैंने एम्प्लॉय किया हुआ है। सोचो हमारे दफ्तर में आपने 3 इंटर्न्स रखे हुए, उनमें से एक जो है वो एक्चुअली लड़की है, वो लड़का बन के आ रही है। So I mean, after a few days, when you find out, you will see. But if she comes and she it says, is going to be really but if serious. that he or she comes and tells me कि इस वजह से, then I would understand, कि if that is justified, तो I would understand. अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि बख्तावर को अब आप देख लें, वो कितना बात करिए कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उसको मदद के लिए बुलाया तो she backed out. She doesn't have the हिम्मत. Yes, I was very disappointed with that. Disappointed, but it's also a reflection of all of us. हम लोग सब बातें करते हैं, बट जब काम का टाइम आता है तो हम सब नहीं, हम सब बैक ऑफ हो जाते हैं। हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा देंगे, ट्वीट कर देंगे, बट जब एक्शंस की बात आएगी तो हम में से कितने लोग No, but it's not even calm, Rabia. She's actually responsible for that acid attack. You see, indirectly. आना उसके ऊपर था ना, उसके ऊपर नहीं आया तो शी शुड एक्चुअली बी फीलिंग गिल्टी एंड मेकिंग श्योर कि हो इधर से बात कर दी, उधर से शीदा नहीं पकड़ा जा रहा ना, सिर्फ उसकी गवाही से ही पकड़ा जाएगा। तो वो जब भेद नहीं खुलेगा तो कुछ भी नहीं होगा आगे। So she needs to work at it. और ऐसी क्या बात है, उसको ले प्रोटेक्शन मिले, अपनी अम्मा को वहां से हटाए पहले, फिर करे, आहत के घर भेजते, अपनी दोस्त के घर भेजते, बहुत कुछ इतनी चीजें कर ली, आप लड़का बन गई पूरा और आप ये नहीं कर सकती। So it doesn't make sense to me.
आहत साहब, अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। आप देख से हम कहाँ के सच्चे में थे, क्या हुआ था उनके साथ, और किसी और में भी आई थिंक इनके साथ तो वैसे यही होता है। हमारे हारून हारून शाहिद, आई एम सेइंग द राइट हाँ, नेम ना। या तो एंड यू नो आहत पे हमारा दिल भी आ गया था इतने छोटे से एपिसोड में। वी लाइक्ड हिम, सो आई वुड हैव लाइक्ड समथिंग हैपनिंग देयर। लेट्स सी क्या होता है। What is the point of bringing him back unless there's nothing happening there? maybe she will go with him in the end. Let's see क्या होता है। Yeah. Okay जी, this is all from our side. आप लोग अपने comments में बताइए, what do you think? Where do you stand on Bakhtavar and Fraud and so many other dramas that we did? By the way, फराज पे भी बताइएगा बबाल में कि आप लोग में से कितने का पेशेंस का टेस्ट हो रहा है उस पे, या आप लोग शाजिया की तरह फराज के जो है वो फैन है। तो we would like to hear from you guys on this. Take care Thank and you for Allah Hafiz. watching. Allah Hafiz.